Hello, everyone from the Scholarship Guidebook community. I hope you are all doing great today. In this video, I'll be diving deep into the University of Palermo Scholarship, covering everything from eligibility to a step-by-step application guide. Before we get started, make sure to subscribe to our channel for more updates. If you find the information helpful, a thumbs up would be much appreciated. Feel free to ask any questions in the comments section below. I value your engagement and support tremendously. Let's get into it. Scholarship Overview. Applications are open for the University of Palermo Scholarship. Palermo University offers a wide range of programs, 122 undergraduate and postgraduate courses first and second cycle, 44 masters and specialization courses and 23 PhD courses. Now what is first and second cycle? First cycle covers undergraduate education leading to a bachelor's degree, while second cycle encompasses postgraduate education including master's degrees and specialized courses. Eligibility is open to applicants from all over the world. The scholarship covers monthly payments of €900, tuition fees, accommodation costs, free meals. Applicants are not required to submit IELTS or TOEFL scores. There is no application fee for this scholarship opportunity. Scholarship Summary. The University of Palermo offers fully funded scholarships for both bachelor's and master's degrees. These scholarships are open to applicants of all nationalities and cover all expenses. The bachelor's program spans 4 years, while the master's by research program extends over 2 years. The deadline for master's applications is July 30, 2024, and for undergraduate degrees, it is August 9, 2024. Types of scholarship. ERSU scholarship, which is regionally based and includes tuition waivers, free meals, accommodation, and some financial support for living expenses. Italian government scholarships are available for both international students and Italian citizens, providing grants to support their studies. Financial benefits. ERSU scholarship includes benefits such as tuition waiver, free meals, accommodation, and a stipend for personal expenses. On the other hand, Italian government scholarships offer grants that cover tuition fees and support living costs for both international and Italian citizens, with occasional coverage for travel expenses as well. Available fields. To get the list of fields of study offered by the University of Palermo, check here. Eligibility criteria. Open to both Italian citizens and international students. Applicants must have the necessary academic qualifications for their chosen program. Age limit typically under 28 to 30 years, depending on the scholarship. Proficiency in Italian or English must be demonstrated through tests or prior education. Strong academic performance and potential are required. Applicants must be enrolled or accepted at an Italian university. A letter of acceptance is needed for visa applications. Candidates must follow Italian government guidelines and regulations. Documents required. The candidates must upload these documents in the online application. A passport photo, a valid passport, CV, a copy of bachelor's degree, a copy of the transcript of the records. IELTS is not required. You can submit an English proficiency letter from your previous institute. How to apply? Register on the University Student Portal. Create an account to start your application. Start the enrollment application. To begin the enrollment application process, go to New Application and navigate to Calls and Enrollment Application for bachelor's or master's degree programs. Finalize enrollment. Follow the steps, personal information, upload documents, to finalize your enrollment. For detailed information and to apply, visit the official university website. If you want to apply, please click on Apply. Link will directly take us to this page. If you are Italian citizen or you are already in Italy and you have tax code, that is the Codice Fiscale, then you have to put your Codice Fiscale here. But if you are an international student, just like you are Pakistani and Indian student, or you don't have Italian tax code, then continue this one, international student. Okay, यहाँ पे आपने अपनी information दे देनी है. Surname, name आ जाएगा, gender. My whole information is wrong, लेकिन आपने wrong नहीं देनी, तो मैं just बता रही हूँ for your practice. Date of birth जो आपकी होगी वो आपने यहाँ कर लेना है. Place of birth जो भी आपकी है, if it is Pakistan, for Pakistan,
सिलेक्ट पे क्लिक किया। ओके सिटी मैं कर देती हूँ लाहौर किया, कंफर्म कर दिया। एंड नेशनैलिटी रिमेंबर एज इन पासपोर्ट, जो कि आपके पासपोर्ट पे है, पाकिस्तान। अच्छा यहाँ पे देखिएगा इटालियन टैक्स कोड यूनिवर्सिटी ने खुद जनरेट कर दिया, बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड यू डोंट हैव codice fiscale। सो आपके पास ये टैक्स कोड आ गया है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ओके मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया और यहाँ पे ईमेल एड्रेस देने के बाद मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ओके यहाँ पे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी चेंज कर देती हूँ। ये मैंने दे दी है और मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देती हूँ। अब हमें एक ईमेल डज नॉट मैच द डाटा। और क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज की थी तो हमारा जो codice fiscale है ये थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा अब मैंने इसे कंफर्म कर दिया, प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे हमारे पास codice fiscale आ गया है। अब मैंने इसे कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ईमेल एड्रेस आएगा कुछ देर के बाद, जब हम लोग इस सारे पोर्शन को फिल करेंगे। सर सिटी यहाँ पे आपने अपना होम एड्रेस दे देना है, जो कि आपका पाकिस्तान में है, तो इसे सिलेक्ट कर लिया। आपका सिटी नेम आ जाएगा, जो कि मैंने लाहौर दिया था तो मैं लाहौर ही करूँगी। जो भी आपके घर का एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। फ़ोन नंबर के लिए आप चेक कीजिएगा कि आपने इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है इस जगह पे। मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देती हूँ। अगर जो आपके पास कोई इटालियन एड्रेस है तो आपने ये वाला पोर्शन जो है ये फिल कर देना है, बट अगर आपके पास कोई इटालियन एड्रेस नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पोस्टल एड्रेस के लिए आपके अगर उन्होंने कोई पोस्टल एड्रेस सेंड करना होगा तो वो आपके रेजिडेंसा मीन्स आपके जो घर का एड्रेस है उस पर सेंड कर देंगे। यहाँ पे आपने जो अपना फ़ोन नंबर देना है वो इस फॉर्मेट में देना है, मीन्स हाइफन नहीं लगाना। तो हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। यू कैन सी द होल डिटेल द समरी पर्सनल डाटा स्टूडेंट, जो भी है वो आपने इधर चेक कर लेना है कि ये सारा ठीक है कि नहीं और इसे कंफर्म कर दिया। After confirmation here say registration successfully completed within a few hours you will receive an email within few hours। so आपको email receive नहीं होगी 10, 15, 20 मिनट्स तक, तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि मैंने पहले कह दिया within a few hours you will receive an email। so जैसे ही email आती है तो then we'll proceed this one। अच्छा देखिए हमें ईमेल रिसीव हो गई है, तो हमने इस पर क्लिक किया। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। आई कंफर्म दिस रजिस्ट्रेशन। ओके आफ्टर कंफर्मिंग दिस रजिस्ट्रेशन इट टेक अस टू दिस पेज, बट हमें एक और ईमेल भी रिसीव होगी जो कि होती है कि आपने अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करना है। अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि पासवर्ड चेंज करने के लिए काफ़ी दफ़ा ये प्रॉब्लम भी करता है, मीन्स पासवर्ड चेंज होता नहीं है, तो आपने उस पर परेशान नहीं होना, आप मैन्युअली भी कर सकती हैं। हम ट्राई कर लेते हैं, एक दफ़ा अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो हम लोग मैन्युअली भी कर लेंगे। ओके ये हमारा हो गया है, हम इसे सेव कर लेते हैं और ये हमें इस पेज पे लेके चला गया है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अगर नहीं होता, आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो सेट योर पासवर्ड, आप यहाँ से भी पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं। अच्छा अब हम लोग एक और वेबसाइट पे जाएंगे, studenti.unipa.it। ये भी मैं वेबसाइट जो है उधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। ओके अब हम लोग यहाँ पे क्लिक हियर टू एक्सेस योर रिजर्व्ड एरिया, इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें इस पेज पे लेके चला जाएगा। मीन्स जो हमारा लॉगिन आईडी है ये यहाँ पे आ जाएगा कि आ गया। मीन्स यहाँ पे अभी तक नो प्रैक्टिस इन प्रोग्रेस, कोई प्रैक्टिस प्रोग्रेस में नहीं हुई है, तो हम लोग न्यू प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रैक्टिस पे क्लिक करके आप ये देखें ये कंप्लीट जो लिस्ट है इसे हमने इग्नोर कर देना है और एंड पे हम आएंगे। एंड पे हम आके
व्यू प्रैक्टिसेस लिस्ट, इस पे हमने क्लिक किया। इस पे भी हम लोग यहाँ पे एक बहुत लंबी सारी लिस्ट है। We have to ignore this list and click on MSc admission request form for international students। इस पे हमने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। इस पेज पे ये लेके आ जाएगा। इस पेज पे जब हम आते हैं तो आप यहाँ पे चेक कीजिएगा सिलेक्ट द डिग्री कोर्स, किस डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आप किस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फिजिक्स के लिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स हैं उन सारों के नाम हैं। अगर मैं ये कहती हूँ कि आई वांट टू अप्लाई इन मैनेजमेंट पोस्ट डेले, ओके आई वांट टू अप्लाई इन फिजिक्स, ओके मैं फिजिक्स में अप्लाई करना चाह रही हूँ। इफ द कोर्स इज नॉट इन द लिस्ट डिस्क्राइब द कोर्स, कि अगर लिस्ट में नहीं है कोई कोर्स तो आप उसे यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। शुड यू बी इंटरेस्टेड, अगर आपके पास ये कोर्सेज है, यहाँ पे देखिएगा ये लिस्ट देखें कि ये वो कोर्सेज हैं जो कि लिस्ट में शो तो नहीं होंगे, तो आपने उन्हें कोड से किसी और नेम से शो होंगे, तो आपने कोड से सर्च कर लेना है। जस्ट लाइक 2232 हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कोड नंबर 2232 ये नेम है जो कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। मैंने इसे क्लिक किया तो ये नाम क्या है, कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ओके ये वाला है, तो वो इस नेम से शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे भी ये लिस्ट देख लेनी है जो भी आपसे रिलेटेड होगी। ओके ब्रीफली डिस्क्राइब योर रिक्वेस्ट, कि अगर आप कुछ भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर लें, अदरवाइज आप यहाँ पे आ जाएं। जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उन्हें अटैच कर लेना है। वैलिड पासपोर्ट आपने पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड कर लेना है जितने भी। उसके बाद पासपोर्ट फोटो है, ट्रांसक्रिप्ट्स हो गई, आपकी बैचलर डिग्री हो गई, आपकी सीवी, लैंग्वेज सर्टिफिकेट में इफ यू हैव आइल्स और टॉफल आप उसे अपलोड कर दें। इफ यू डोंट हैव आइल्स एंड टॉफल बिकॉज दोज आर नॉट मैंडेटरी, सो यू कैन अपलोड योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया। तो इसके अलावा एडिशनल डिग्री और सर्टिफिकेशन, अगर आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेशन या कोई और सर्टिफिकेशन की हुई हैं तो आप उसे अपलोड कर दें। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हें अपलोड कर दें। जब आपके वो अपलोड हो जाएंगे यहाँ से आपने अटैच करते जाना है और यहाँ पे आके आपने उसे कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी।